Good morning, students. As you know, we have finished our exercise 1.1 and exercise 1.2 of chapter 1 real numbers. So now we have to start exercise 1.3, but before it, we have to study about irrational numbers and their proof. So we have here theorem 1.3. Theorem 1.3 is let P be a prime number. Let P be a prime number. If P divides a square, then P also divides a, where a is any positive integer. एक्सरसाइज 1.3 में हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे। तो उससे पहले हमें ये थ्योरम 1.3 बहुत अच्छे से पढ़नी है। थ्योरम 1.3 हमारे पास क्या है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, दिस P बी अ प्राइम नंबर। अब अगर हमारा ये प्राइम नंबर P, if P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ये P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन P वही प्राइम नंबर P A को भी डिवाइड करेगा, जहां पर कि हमारा जो A है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। मैथमेटिकली इसको अगर समझा जाए, मींस इन शॉर्ट वी कैन राइट एज इफ P divides A square, if P divides A square, it implies that P also divide A. तो थ्योरम 1.3 का यूज हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने के लिए करेंगे। अब इस थ्योरम 1.3 का यूज हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। थ्योरम 1.4 भी हमारे पास क्या है, root 2 is irrational. Now we have to prove that theorem. Theorem 1.4 is what? Theorem 1.4 is root 2 is irrational. Root 2 is irrational. Root 2 irrational हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। वैसे हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा था इसके बारे में कि कुछ एक नंबर्स एज लाइक रूट 2, रूट 3, रूट 5, root 7, pi, etc. all are the examples of irrational numbers. But हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि root 2 irrational number है। तो हम इसे कैसे प्रूव करते हैं? Let us assume on the contrary, that root 2 is a rational number. Root 2 is a rational number. Then there exists
there exist two positive integers a and b, positive integers a and b where b is not equal to 0, such that root 2 is equal to a upon b. हमने क्या किया? Let us assume that, हम मान लेते हैं, let us assume on the contrary that, on the contrary means कि हम जो रिजल्ट है उसके अगेंस्ट चलते हैं, उसके विरुद्ध में चलते हैं, और मान लेते हैं कि let us assume on the contrary that root 2 is a rational number. हमें प्रूव करना है irrational, बट हम मानकर चल रहे हैं इसको rational number. तो then अगर हमारे पास root 2 एक rational number होता है तो it means what? Then there exist two positive integers a and b where b is not equal to 0, such that root 2 is equal to a upon b, where a and b have no common factor other than 1. इसका मीनिंग क्या हुआ? कि इसका मीनिंग है कि अगर a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो हम कह सकते हैं कि a और b हमारे पास क्या है? को प्राइम इंटीजर्स. सो इट फर्दर इंप्लाइज ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी विल गेट इट एज 2 is equal to a square upon b square. We can write on squaring both sides. It further implies that 2b square is equal to a square. b square यहाँ पर डिवाइड में इक्वल के लेफ्ट साइड आ गया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया. It will become 2b square is equal to a square. Now it implies what? It implies 2 divides a square. अब 2a square को क्यों डिवाइड कर रहा है? Because 2 divides b square and 2b square is equal to a square. एक रीजन आ गया इसका. हमने यहां पर लिखा कि 2 डिवाइड्स a square. 2a square को डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर 2 क्या कर रहा है? b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. यहां पर a स्क्वायर आएगा. यस, b स्क्वायर. 2 divides a square because this 2 divides b square 2b square, सॉरी यहाँ पर आएगा 2b square, बिकॉज ये 2 जो है हमारा वो 2b square को डिवाइड कर रहा है, बिकॉज 2 divides 2b square and 2b square is equal to a square. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 2 divides a square. ओके, बिकॉज 2 divides 2b square and 2b square is equal to a square. So we can write it as 2 divides a square. और अभी हमने थ्योरम 1.3 पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा. तो उसी थ्योरम का यूज करके हम यहां पर लिख सकते हैं कि 2 also divides a. Why? Because if p divides a square, then p also divides a, where a is
एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा इतना काम हो गया। यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं। 2 डिवाइड्स a, हम इसको इतना रब कर देते हैं। रिजल्ट हमारे पास फाइनल रहेगा 2 डिवाइड्स a। नाउ let a is equal to 2c. We can write why, because of this, because 2 divides a। तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है यहां पर। Now it implies on squaring this a square is equal to 4c square, a square is equal to 4c square। We can put here the value of a square because हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट था। It implies we can write it as 2b square is equal to 4c square। Why? Because 2b square जो है वो किसके इक्वल था? a square के इक्वल। So we can write a square is equal to 2b square। It further implies b square is equal to 2c square। It implies what? It implies again the same thing, 2 divides b square। Why? Because the prime number 2 divides 2c square and b square is equal to 2c square। By using the theorem 1.3 like this, it implies if 2 divides b square then 2 also divides b। Why? Because if prime p divides a square then the same prime p divides a को भी डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? b है, तो हम यहाँ पर इस थ्योरम का यूज करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया? b। दिस इज सेकेंड रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2। 1 में हमारे पास क्या था कि 2 डिवाइड्स a, मीन्स 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। और सेकंड में हमारे पास क्या है? 2 डिवाइड्स b, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी और b को भी। तो फ्रॉम 1 and 2 we have what? We obtain that 2 is a common factor। 2 is a common factor of a and b। हमारे पास यहां से from 1 and from 2 क्या रिजल्ट आ गया? We obtain that this 2 is a common factor of a and b। We have to rub this, but this contradicts the fact that, a and b have no common factor। a and b have no common factor other than 1। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों राइज हुआ? यहां पर
बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो गया, हम लिखेंगे यहां पर दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption that root 2 is a rational number. Root 2 is a rational number. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अजम्पशन था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है वो गलत है। तो सही क्या है फिर? वी कैन से व्हाट इज राइट, इट इज, सो वी कंक्लूड दैट root 2 is an irrational number, hence proved। तो ये था हमारा थ्योरम 1.4 का प्रूफ कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम रूट 3 के लिए भी कर सकते हैं, रूट 5 के लिए भी कर सकते हैं, रूट 7 के लिए भी, एंड सो ऑन। ओके, तो हमें क्या करना है कि जहां पर हमने 2 लिया है वहां पर प्राइम नंबर हमारा क्या आ जाएगा 3, और जहां पर 2 लिया है इन केस ऑफ रूट 5 वहां पर हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा 5। इन केस ऑफ रूट 7 हमारा जो प्राइम नंबर है वो कितना आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा 7। सो बाकी बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है रूट 3, रूट 5, रूट 7 के प्रूफ के लिए भी। ओके, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एक्सरसाइज 1.3 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप रूट 3, रूट 5 और रूट 7 के लिए सेम मेथड ट्राई कर सकते हैं। दैट्स ऑल।